currently working as assistant professor at Guru Nanak College of Education, Dalliwal, Hoshiarpur. Dr. Mahajan is actively engaged in academic research and editorial work, contributing significantly as a member of the Faculty of Education at Punjab University, Chandigarh. She is a member of Curriculum Revision Committee for the Delhi Board of School Education. She is a program coordinator at the Council for Teacher Professional Development. Additionally, she served as an editorial board member and reviewer for reputed research journals and is approved academic counselor for IGNOU. With the extensive academic portfolio, Dr. Mahajan has participated national, international seminar workshops at various times, and she also deliberated numerous extension lectures, act as a resource person, serve as a reviewer, session chair, and advisory committee member for various academic organizations. Beyond this academia, Dr. Mahajan has been practicing tarot card reading for 12 years. That is a blending of scientific insight with psychology and metaphysics perspective. Her dedication to education, research, and holistic development makes her a versatile and impactful scholar. Today, ma'am is deliberating on the topic equity and inclusiveness, that is important for school education. So now I hand over the mic to Monica ma'am for further deliberations. Thank you so much, Raman ma'am. I sincerely thank you for the warm welcome extended to me. Your kind words have made me feel truly honored, ma'am. I look forward to contributing meaningfully to the session and engaging in enriching discussion with everyone present. So I will share my screen. Please let me know when my screen is visible. Is screen visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, it's perfectly fine. Okay. Okay. Good afternoon, students. Topic, as Raman ma'am has said, the topic given to me was equity and inclusion, but I have added diversity to that also. Okay. So the topic that I will be discussing with you will be diversity, equity, and inclusion. Okay. As can you tell me which language should I opt, ma'am? English or Hindi or bilingual? It's bilingual. Okay, ma'am. Okay, fine. Okay. So as you all know that we all are different. Okay. But at the same time, we are same, but still we are unique. Everyone is different, still same, but unique. And this is the responsibility that you have to do when you enter the school, because when you will be in the schools, you will be dealing with the students, those who will be same in certain aspect, different in another, but unique in every aspect. So this is a huge responsibility that you have to cater, and today we will be discussing about on that. So I think all of you have studied about diversity in your semester 4th. There is a subject on this in which you must have studied about diversity, inclusive education. So first of all, proceeding further, I want to know, when I say diversity, what comes to your mind? I'm sharing a Metimeter with you. I think it's visible. My screen is visible. Yes, ma'am. All of you can scan this code from the screen. You can scan this code and write what comes to your mind when I say the word diversity. Once you will start, एक बार आप response देना शुरू करोगे तो वो screen पे आना शुरू हो जाएगा.
क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटी, इन सबको समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिटी क्या है, और आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं जब हम वर्ड डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो आई थिंक हर स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस होंगी, मतलब यू कैन रिस्पॉन्ड, यू कैन गिव टू ऑप्शंस। आपके दिमाग में कुछ भी, जब भी हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, तो कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में जो वर्ड आ रहा है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। बेटा QR कोड स्कैन करो ते ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ। Ma'am, diversity means a huge variety of something, a wide variety we can say. ओके ओके, वाइड, अगर आप यहाँ पे सब लिखेंगे तो हमें एक बहुत अच्छे से एक हमारे पास वर्ड क्लाउड बन के आ जाएगा। तो अगर, बट आई थिंक इट्स वेरी इजी, यू आपको बस स्कैन करना है, आपके पास एक लिंक खुलेगा, आपको उसमें फीड करना है और सबमिट करना है, दैट्स इट। ਬੱਚੇ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋ, ਸਕੈਨ ਕਰੋ QR ਕੋਡ। अभी जैसे किसी ने 12 लिखा है, यहाँ पे आपने देखना, आपने ये वर्ड बताना है जब मैं बोल रही हूँ डाइवर्सिटी, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है। जैसे सपोज करो मेरे दिमाग में ये वर्ड्स आए, कहाँ कहाँ हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, आप स्कैन करोगे साथ में ही रिस्पॉन्स सामने आ जाएगा। सी, हाइट एंड कलर, जैसे मैंने लिखा है हाइट एंड कलर, आप, यस वेरी गुड। इनइक्वालिटी, it's very easy, you just need to scan and enter, that's it. Now that's good, everyone is unique. I just want to know कि किस डायमेंशन में हम यूनिक हैं। जब मैं बोलती हूँ डाइवर्सिटी, हमें सब पता है कि हम एक दूसरे से अलग हैं, किस किस एस्पेक्ट पे हम एक दूसरे से अलग हैं। हाइट हमारी अलग है, कलर अलग है, इनइक्वालिटी नो डाउट है, डाइवर्सिटी के कारण हर कोई यूनिक है, पर किन क्या चीजें हमें एक दूसरे से यूनिक बनाते हैं। रेस, जेंडर, वेरी गुड। by character, caste, यस, आप लिखो, इसको टाइप करो, लिखो। कास्ट, कलर, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। सो आई जस्ट वांट टू नो आपके दिमाग में कौन कौन से डायमेंशंस आते हैं जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। क्योंकि अगर हमें इंक्लूजन को पढ़ना है, हमने इक्विटी को पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है डाइवर्सिटी। जब तक हमें इस चीज की समझ नहीं होगी तो हम इंक्लूजन नहीं कर पाएंगे। व्हाट एल्स, अगर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं है इसमें रिस्पॉन्स करने के लिए, तो आई थिंक आपने चैट में देख लिखा है, तो आई विल सी चैट, चैट में क्या कुछ लिख रहे हैं आप सब। चलिए, अभी तक हमारे पास, अगर आई विल वेट फॉर सम टाइम, देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स और रिस्पॉन्स करते हैं। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। स्कैन कीजिए और सबमिट कीजिए। सी, जब हमने अभी डाइवर्सिटी की बात की, आप में से कुछ इस चीज को लेके कंफर्टेबल नहीं थे कि जो इस तरह से स्कैन करें
और सबमिट करें, ठीक है। सम वर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग, कुछ चैट में लिखना पसंद कर रहे थे। क्लियर? तो इससे क्या है, हमें पता चलता है कि हम हर किसी का एक रिस्पॉन्ड करने का, चीजों को सीखने का तरीका अलग है, ठीक है। हर इंडिविजुअल एक अलग तरीके से काम करता है। अभी यू आर ऑल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। जब आप स्कूल में जाएंगे आपके पास बहुत छोटे बच्चे होंगे, तो उनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एज आई एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट किया था ये बहुत सिंपल चीज है, हर कोई कर लेगा, ठीक है, बट नहीं कर पाए। क्लियर? उससे क्या समझ आ रहा है कि हमें समझना पड़ता है कि मेरी ऑडियंस कितनी डाइवर्स हो सकती है, मुझे हर एस्पेक्ट ओपन रखना पड़ेगा उनके लिए। मुझे ऑडियो चैट का जिस मतलब भी तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप में से कुछ ने लिखा है इनइक्वालिटी, एवरीवन इज यूनिक, डिफरेंट टैलेंट, नो वन इज इक्वल, multicultural, religion, different type of people come from various region of our nation, very good, change, human diversity, inequality, rank, caste, character, language, very good. सुखदेव सिंह ने लिखा है language, religion, race, class, gender, sex, abilities, unique abilities, very good, बहुत अच्छी चीजें आपने लिखी हैं। habits, differences, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जहां पे हम एक दूसरे से अलग हैं। देखो, जो हमें जब आपने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस अमंग पीपल, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग दैट सेट्स वन इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम अनदर। ओके, वो कोई भी चीज जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है, दैट इज डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी को, और ये एक फैक्ट है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है वो है, और हमें क्या करना है, उसे रिकॉग्नाइज करना है सबसे पहले, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि एवरीबडी इज नॉट इक्वल, हर कोई एक दूसरे से अलग है। तो रिकॉग्नाइज करना और उसको एक्सेप्ट करना ये बहुत जरूरी है। क्लियर? एज ए टीचर आप देखोगे कि जब हम, अभी आपने भी जब डायमेंशंस की बात की, कुछ जो भी आपने लिखे, किसी ने रेस लिखा, किसी ने कास्ट लिखा, ठीक है, किसी ने हाइट लिख दिया, किसी ने कलर लिख दिया, तो कुछ जो डाइवर्सिटी है वो हमारी होती है विजिबल, जो हमें दिख रही है। ओके, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं है। जो हमें चीजें दिख रही हैं वो बहुत कम है। जैसे क्या चीजें हमें दिख रही हैं? कैन एनीवन आंसर? अगर किसी इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो हमें उस इंडिविजुअल में क्या कुछ दिखता है? उस इंडिविजुअल में हमें क्या कुछ दिखता है? एनीबडी कैन आंसर? जो देखने में पता चल जाता है कि ये इंसान दूसरे इंसान से अलग है, देखने में क्या चीजें पता चलती हैं? फिजिकली, ओके, हाउ हाउ दे वॉक, कैसे कोई चलता है, ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? देखो, आई वांट टू मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव। हम आप रिस्पॉन्ड करोगे तभी मैं अपनी ऑडियंस को समझ पाऊंगी और फिर हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। हमें क्या चीजें देखने में पता चल जाती हैं? सपोज आप स्कूल में गए हो, ठीक है, स्कूल में आपने बच्चों को पढ़ाना है, और कुछ चीजें आपको देखने में पता चल जाएंगी कि ये बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। वो क्या चीजें होंगी जो आपको देखने में पता चल सकते हैं? कलर, वे ऑफ स्पीकिंग, फिजिकल अपीयरेंस, हाउ दे टॉक, वॉक, पर्सनालिटी। देखो, पर्सनालिटी, कुछ एस्पेक्ट्स पर्सनालिटी के हमें देखने में पता चल जाएंगे। हाइट, वेरी गुड। इंटेलिजेंस, यस, कुछ हद तक, चलिए। फेस इंप्रेशंस, एक्सप्रेशंस, यस, इंप्रेशन से बेटर एक्सप्रेशंस, वेरी गुड। व्हाट एल्स? जो चीजें हमें देखने में पता चलती है। हाँ जी, नथिंग मैम, जस्ट आई थिंक ਉਹਦਾ फोन ऑन हो गया बच्चे का माइक। Okay. मेंटल एबिलिटीज, ओके। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें बताओ जो हमें शायद हम, आप किसी को समझने से बेटर खुद के ऊपर लेके आओ कि आप अपने फ्रेंड से या अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से कैसे अलग हो, ठीक है। कुछ चीजें तो सबको दिख रही हैं कि आप अपने ब्रदर सिस्टर्स के से हाइट में डिफरेंस है, आपका जेंडर का डिफरेंस है, क्लियर, कलर का डिफरेंस है, ये तो दिख रहा है हमें। इमोशनल, ओके,
थिंकिंग पैटर्न, थिंकिंग देखो हमें दिखती नहीं है, पर हाँ जब हम किसी से बात करते हैं हमें पता चल जाता है, वेरी गुड। इंटरेस्ट किसका कैसा है, ओके। कॉन्फिडेंस लेवल, वेरी गुड। स्किल्स, ओके, स्किल्स हम देख पता चल जाती हैं, एटीट्यूड, नेचर, और सोचो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, व्हाट एल्स कैन बी देयर। कुछ चीजें हमें दिख रही हैं, कुछ चीजें हमें नहीं दिख रही हैं, आप जो नहीं दिख रही हैं वो भी लिख सकते हो, पर हाँ वो हमें एक दूसरे से क्या कर रही है, अलग कर रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैलेंट, एडजस्टमेंट लेवल, वेरी गुड अमन, एडजस्टमेंट, आइडियोलॉजी, थिंकिंग, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, नेचर, लॉजिक, क्रिएटिविटी, गुड। देखो जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, हाँ तो हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि 5 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं हम, है ना, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल। ये 5 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं जो पूरी हम बीएड में आपको बार बार कहा जाता है, हमने इन्हीं एस्पेक्ट काम करना है और इन्हीं एस्पेक्ट्स को हमने लेके जाना है टुवर्ड्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। और यही वो चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करती हैं, और इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज यू नो उसमें हेरिडिटी का पार्ट है और एनवायरनमेंट का पार्ट आता है, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण मतलब इंडिविजुअली हम डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट, हर एस्पेक्ट पे हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। किसी को खाने में पिज्जा पसंद है और किसी को घर का दाल चावल पसंद है, ठीक है। किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और किसी को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। किसी को बात एक बार में समझ आ जाती है, किसी को हो सकता है 2-3 बार समझानी पड़े। किसी को, अब हर किसी का पढ़ने का स्टाइल अलग है, कोई लिख के पढ़ता है, ठीक है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई बोल के पढ़ता है, कोई टेस्ट दे दे के पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये हम हमारा हर एक इंसान का, हम एक दूसरे से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, ओके। इसमें कुछ आया है अलग, स्टूडेंट्स ने लिखा है आईक्यू लेवल, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज डिफरेंट इन एवरी पर्सन, जेलसी फैक्टर, ओके दैट इज फाइन। व्हाट एल्स? अब देखो इसमें हमारे कुछ एस्पेक्ट्स इस तरह के आते हैं जो इनविजिबल है, ठीक है, दैट जो हमें एकदम से नहीं दिखेंगे, जब हम किसी से बात करेंगे, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो हाँ हमें वो चीज विजिबल होनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी किसी ने कहा जेलेसी फैक्टर, एडजस्टमेंट पैटर्न, ठीक है, ये एकदम से हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट यस व्हेन वी स्पेंड टाइम तो हमें वो चीज विजिबल होनी शुरू हो जाती है, ओके। और ये जो इनविजिबल डाइवर्सिटी है ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है उस पर्सन की आइडेंटिटी और एक्सपीरियंसेस बनाने में, ओके। अब देखो जैसे आइसबर्ग की बात सबने सुना हुआ है, यू नो अबाउट आइसबर्ग, सबको पता है कि आइसबर्ग क्या होता है। आइसबर्ग का बहुत कम पोर्शन है जो आई थिंक सबको पता है, टाइटैनिक मूवी की स्टोरी, टाइटैनिक एक आइसबर्ग के साथ टकरा गई थी क्योंकि उनको लगा था कि बहुत छोटी सी चीज, ऊपर छोटा सा पहाड़ है स्नो का, ठीक है, तो बट वो उसके नीचे बहुत कुछ होता है। अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं, डाइवर्सिटी आइसबर्ग की बात करूं, तो इसमें कुछ चीजें तो हमें विजिबल हैं, जैसे कि एज, स्किन कलर, रेस, एथनिसिटी, ठीक है, जेंडर क्या है हमारा, सोशल स्किल्स क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो ये चीजें तो मुझे दिख रही हैं, बट बहुत सारी चीजें मैंने बहुत कम यहाँ पे लिखी हैं, बट देयर मेनी मेनी कि जो इससे नीचे हैं, जो हमें विजिबल नहीं है। उसमें क्या आएगा, मेंटल हेल्थ क्या है, बच्चे का एजुकेशन क्या है, उसका फैमिली स्टेटस कैसा है, उसके खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ठीक है, उसका रिलीजन, कुछ चीजें तो हमें दिख जाती हैं, जैसे सिख फैमिली को बिलोंग करता है, अगर कड़ा डाला है तो रिलीजन का कुछ चीजें दिख जाएंगी, बट उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका लाइफ को चीजों को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, उसके वर्क एक्सपीरियंसेस क्या है, उसकी कोग्निशन कैसा है, रीजनिंग कैसे है, ये सब चीजें हमें विजिबल नहीं होती हैं। बट एज अ टीचर, क्योंकि हमें एक इंडिविजुअल के साथ रिलेट डील करना है जिसमें ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैं भी आप सबके साथ बात कर रही हूँ, कुछ चीजें मुझे दिख रही हैं, कुछ कैमरास ऑन है, स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स के कैमरास ऑफ हैं, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है आई डोंट नो, तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड देम वेल,
तो डाइवर्सिटी को मतलब इंक्लूजन और इक्विटी की बात करने से पहले सबसे जरूरी है हमें डाइवर्सिटी के बारे में पता हो, क्या चीजें हमें एक दूसरे से अपार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहां तक किसी को, कोई स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है, कुछ चीज नहीं क्लियर हो रही है? अभी तक हमने डाइवर्सिटी की बात की। डाइवर्सिटी इज व्हाट, जो हमें एक दूसरे से अलग करती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें हमें विजिबल होती हैं, कुछ चीजें हमें विजिबल नहीं होती हैं, और इसको हमने मेटाफोरिकली एक आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया। ओके, यहाँ पे एक डाइवर्सिटी व्हील की भी बात की जाती है। नॉर्मली कहा जाता है ये जो एक डाइवर्सिटी व्हील है, ये लॉर्डन एंड ड्रोजनर ने दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि दो व्हील्स के दो पार्ट हैं, एक इनर है और एक आउटर है। इसको प्राइमरी और सेकेंडरी भी कह देते हैं। तो इनिशियली जब उन्होंने अपना ये व्हील दिया, डाइवर्सिटी व्हील की बात की, तो उन्होंने प्राइमरी व्हील में सिर्फ 6 चीजें लिखी, जैसे कि एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एथनिसिटी, रेस क्या है, जेंडर क्या है, और फिजिकल एबिलिटीज क्या है। तो ये 6 एस्पेक्ट्स को कहा कि जो हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, मेरी रेस क्या है, मेरा नेशन कौन सा है, मेरी एज क्या है, मेरे में क्या फिजिकल एबिलिटीज है, इनको मैं ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हूँ। ठीक है, हाँ, कुछ चीजों को हम चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे सेकेंडरी पार्ट में आ रहे हैं, या आउटर साइड ऑफ द व्हील में आ रहे हैं, जहां पे क्या कुछ आ रहा है, हमारी रिलीजियस बिलीव्स क्या है। नो डाउट रिलीजन हमारा एक बन गया बाय बर्थ, बट हम रिलीजन को चेंज कर सकते हैं, मैं अपना रिलीजियस बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकती हूँ, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को हम अपना कम ज्यादा कर सकते हैं, थिंकिंग स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन, पेरेंटल स्टेशन स्टेटस, एजुकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन का मेरा क्या स्टाइल है, मेरे में क्या स्किल्स हैं, मेरी अपीयरेंस कैसी है। नो डाउट आई कांट चेंज माय हाइट, ठीक है, मतलब हाइट में ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट यस, साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि आजकल कलर लाइटनिंग हो जाती है। ठीक है, आई हैव इवन सीन द केसेस जहां पे लोग अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, बट मेजरली चीजों में ज्यादा चेंज नहीं आता। और जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम हमेशा बात करेंगे मेजॉरिटी की। ठीक है, मेजॉरिटी में लोग इन चीजों को चेंज नहीं करते हैं, बट यस टू सम एक्सटेंट दे कैन चेंज। मैरिटल स्टेटस क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन क्लासिफिकेशन कैसी है, किस तरह की जॉब कर रहे हो, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या है, ये सब चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं विद टाइम। ओके, और जो डाइवर्सिटी व्हील लॉर्डन और रोजनर ने दिया था, उन्होंने कहा था कि ये कोई फाइनल नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इनमें कुछ चीजों को ऐड कर सकते हो, जैसे इनर व्हील में प्राइमरी डाइवर्सिटी में हमने कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजों को रिमूव कर सकते हैं, और सेम इज द केस विद द सेकेंडरी डाइवर्सिटी। ओके, ये डिपेंड करेगा हमारा मतलब कह लीजिए प्लेस टू प्लेस, हर इंस्टीट्यूट का एक खुद का डाइवर्सिटी व्हील हो सकता है। अगर आप एज अ टीचर स्कूल में गए हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानना शुरू करो, ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप बताओ कि आप एक दूसरे से कैसे अलग हो, ऐसे ही आप स्कूल में जाके अपने स्टूडेंट्स को कह सकते हो कि अपने बारे में बताओ, आप में क्या प्लस आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या चीज आपको दूसरों से अलग करती है, और फिर उन चीजों को कंसीडर करते हुए आप एक डाइवर्सिटी व्हील बना सकते हो। इसमें जर्नली देखो इनर स्फीयर में क्या क्या चीजें आएंगी, जब हमने किसी भी चीज का इनर स्फीयर, जो चीजों के साथ हम बॉर्न हुए हैं और उन पे हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जैसे कि एज। और जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इसका कहीं पे भी ये मतलब नहीं है इट्स जस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, इट कैन बी टीचर्स ऑल्सो। आपने पेरेंट्स के साथ डील करना है तो वो सारे आपका ग्रुप का पार्ट बनते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अलग अलग तरह के लोगों में, एज ग्रुप में काम करना आता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो इनर स्फीयर ऑफ डाइवर्सिटी है दैट इज एज। एज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारा जेंडर क्या है, जर्नली आजकल लोग जेंडर को भी चेंज कर रहे हैं, देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर दैट, बट यस, मेल
फीमेल, ट्रांसजेंडर हो, नॉन बाइनरी हो, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, ठीक है। फिर आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। जैसे इसमें हेट्रोसेक्सुअल है, LGBTQ+ आ गया, ठीक है। रेस क्या है, रेस मीन्स वही स्किन कलर, फेशियल फीचर्स क्या है आपके, एथनिसिटी क्या है, कहाँ को बिलोंग करते हो, आपका रीजनल बैकग्राउंड क्या है, क्लियर। एक इंडियन जो है उसका माइंडसेट, वो हम आते हैं ना इंस्टा एंड फेसबुक पे हम देखते हैं, टेल योरसेल्फ दैट यू आर इंडियन विदाउट टेलिंग दैट यू आर इंडियन। तो कुछ ऐसी हरकतें या ऐसी चीजें हम जरूर करते हैं जो हमारी एथनिसिटी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। फिर हमारी मेंटल एबिलिटीज क्या है, IQ लेवल क्या है, उसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है। अगर कोई बाय बर्थ कुछ इश्यूज है, न्यूरो डाइवर्सिटी अगर है, तो उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यस हम उन पे काम जरूर कर सकते हैं, ओके। आई थिंक इनर स्फीयर डाइवर्सिटी क्लियर है। ये वो चीजें जिनके साथ आप जर्नली बॉर्न हुए हो और आपका इन पे कंट्रोल नहीं है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे केसेस आते हैं कि स्टूडेंट्स इस चीज के साथ, आपको इन चीजों के साथ डील करना पड़ेगा। नो डाउट वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी की हम कभी बात नहीं करते हैं, बट ये चीजें आज के टाइम में स्कूल्स में डिस्कस होती हैं, बच्चे इन चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं, और घर पे जनरली दे डोंट हैव एनीबडी कि जिसके साथ वो ये इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सके। तो स्कूल्स में एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, आपको इन चीजों के बारे में ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्लियर। फिर आ गया हमारा आउटर स्फीयर डाइवर्सिटी, जिसपे कुछ हद तक हमारी चॉइस है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, हमारा रिलीजन और बिलीफ सिस्टम, हम कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, कैसा पीछे से पढ़ के आए हैं, हमारे पेरेंट्स की एजुकेशन क्या है, क्योंकि ये सब चीजें एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करती हैं। हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मेरी पर्सनल वैल्यूज क्या है, ठीक है। ये आउटर स्फीयर में है। और मैं सी वेदर आई एम डिसिप्लिन पर्सन, मैं पंचुअल हूं कि नहीं हूं, दीज आर माई पर्सनल वैल्यूज। वैल्यूज में भी आपको पता है बहुत तरह की वैल्यूज होती हैं, सोशल वैल्यूज हैं, पर्सनल वैल्यूज हैं, ठीक है, एथिकल वैल्यूज हैं, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीजों को लाइफ को एक्सपीरियंस करने का। पर्सनल अपीयरेंस में जैसे मैंने बात की कि इसमें हमारा आया ड्रेसिंग स्टाइल आ गया, ग्रूमिंग आ गया, बॉडी लैंग्वेज आ गया, ठीक है। जोग्राफिकली आप किस एरिया को बिलोंग करते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपका आउटर स्फीयर में है, आप चेंज भी कर सकते हो कभी भी, मतलब कहीं आप जैसे कोई माइग्रेट कर जाता है, कोई इमिग्रेशन के केसेस हैं, तो वहां पे हम अपनी जोग्राफिकल बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं, बट एथनिसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। एक्सपीरियंशियल डाइवर्सिटी, ठीक है। कुछ के बच्चे माइग्रेंट्स हैं और स्कूल्स में, एंड आई विश कि आप सबको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो स्कूल्स में आपको डाइवर्स तरह के बच्चे मिलेंगे, कुछ माइग्रेंट्स के बच्चे मिलेंगे, ठीक है। कुछ बहुत अच्छी फैमिलीज को बिलोंग, जो फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिलीज हैं, वहां के बच्चे मिलेंगे, कुछ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स भी हैं आज के टाइम में। तो इन सब तरह के बच्चों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, आप सोचो कि मैम रिलीजन और बिलीफ का बच्चों के साथ तो क्या लेना देना है, ठीक है। बच्चों में भी लेना देना है, क्योंकि बच्चे, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उसका एक रिलीजन पैटर्न डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे, और मोर ओवर व्हेन यू आर इनटू स्कूल्स, वहां पे डिफरेंट टीचर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो आपने वहां पे कैसे चीजों को डील करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे लिए डाइवर्सिटी को समझना, जैसे हमने डाइवर्सिटी में कहा कुछ चीजें तो दिख रही हैं ऊपर से, कुछ चीजों को हमें ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा स्टूडेंट के केस में, ठीक है। कुछ चीजों को आप चेंज कर पाओगे, कुछ चीजों को आप चेंज नहीं कर पाओगे, और जिन चीजों को हम चेंज नहीं कर पाएंगे उनको हमें क्या करना पड़ेगा, एज सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने शुरू में बात की थी, डाइवर्सिटी इज अ फैक्ट, वी कांट चेंज इट, ठीक है। उसको एक्सेप्ट, सबसे पहले हमें डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना है, और देन हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है। देयर इज नो अदर वे, क्लियर। अब जब मैंने आपको कहा कि आप स्कूल में एक अपना डाइवर्सिटी व्हील बना सकते हो, उसका पर्पस क्या होगा, क्या वो जरूरत क्यों है हमें डाइवर्सिटी को समझने की। मेरे पास तो बच्चे हैं, मुझे तो मैम बस स्कूल में जाके इनको पढ़ाना है, दैट इज नॉट द ओनली थिंग जो आपको करना है, आपको बच्चे को समझना है, ठीक है। समझने के लिए
उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे वो इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो वो कहाँ कहाँ अलग हैं एक दूसरे से, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इससे क्या है, एक तो सेल्फ अवेयरनेस आएगी बच्चों में, और वो खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आप बच्चों को, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप बच्चों को बोल सकते हो कि आप अपना एक डाइवर्सिटी व्हील बनाओ, क्या चीजें आपको एक दूसरे से अलग कर रही हैं, जो दिख रही हैं, और कुछ चीजें शायद आप में ऐसी होंगी जो हमें नहीं दिख रही हैं, पर आपको पता है आप एक दूसरे से अलग हो, तो वो आप उसको आउटर व्हील में ले जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, हर स्टूडेंट का अपना एक डाइवर्सिटी व्हील होगा, तो हर स्टूडेंट एम्पैथेटिक होगा, वो रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, आप भी एम्पैथेटिक हो जाओगे, रिस्पेक्टफुल हो जाओगे। और जब आपको बच्चे की डाइवर्स नीड्स के बारे में पता चलेगा, जैसे एक बच्चा कहता है कि मैम मुझे ना लिख के पढ़ना पसंद है, ठीक है, या मैं ना मतलब मैं आपको एक केस बताती हूँ, उसमें क्या था, एक छोटा बच्चा था, वो जब कुछ भी पढ़ना होता था ना, वो वॉशरूम में चला जाता था बुक लेके, और वो वॉशरूम की मतलब कंपोर्ट पे बैठ के वो पढ़ता था, लर्न करता था, और उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती थी वॉशरूम में जाके। ठीक, बिल्कुल डिफरेंट चीज है, नॉर्मली कोई भी नहीं करता, बुक्स को कोई वॉशरूम में लेके नहीं जाता। हाँ, अलग पर्पस से आप मतलब यूज करते हो सकते हो, बट बेसिकली नोबडी टेक्स बुक्स टू वॉशरूम टू रीड। ठीक है, वो बच्चा वहां पे बैठ के पढ़ता था, उसने एक नई चीज अपने बारे में बताई, तो मुझे वहां पे उस चीज को समझना है, रिकॉग्नाइज करना है, फिर उस पर काम भी करना पड़ेगा। क्लियर? और जब मुझे बच्चों के बारे में पता चल जाएगा कि हर बच्चा कैसे डिफरेंट है, तो मुझे अपना स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प हो जाएगी। मुझे इंक्लूसिव टीचिंग करनी है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। मुझे बच्चों का सोशल लेवल समझ आ जाएगा, सोशल इमोशनल लर्निंग मुझे पता चल जाएगी, उनमें क्या स्किल्स हैं। ठीक है, मुझे उनके बारे में समझ आ जाएगा, और बच्चे को खुद के बारे में पता चल जाएगा, बच्चे की खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, वो ओपन डायलॉग्स में आना शुरू हो जाएगा। मतलब ओपन डायलॉग मतलब ओपन डिस्कशन, हम ये नहीं कहेंगे नहीं 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 ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, हमारे साथ नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, थिंग्स डू एग्जिस्ट। ठीक है, इवन इफ वो चीजें हमारे साथ नहीं हो रही है तो। क्लियर? हमारा मतलब इंक्लूसिव स्कूल कल्चर बनेगा, क्योंकि जब हमें लोगों के बारे में ज्यादा पता चलेगा तो हमारा इंक्लूजन की तरफ हम जा पाएंगे, तो कल्चर डेवलप हो जाएगा। टीचर की ट्रेनिंग हम उस हिसाब से कर सकेंगे, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज उस हिसाब से प्लान कर पाएंगे, हम बच्चों को सेंसिटाइज कर पाएंगे चीजों को लेके, अगर हमें डाइवर्सिटी के बारे में पता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो जब आप स्कूल में जाओ या जर्नली जब आप फ्रेंड्स बैठो, ठीक है, तो हम एक दूसरे से इन चीजों के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको क्या चीज डिफरेंट है, क्या मतलब हम एक दूसरे से डिफरेंट है। और इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज DQ। ठीक है, आई थिंक आप सबने IQ के बारे में पढ़ा हुआ है, IQ सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, IQ, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, EQ, Yes, ma'am. SQ, No. SQ नहीं पढ़ा। ठीक है, जर्नली हम यही चीजें 3 पढ़ाते हैं, IQ इज इंटेलिजेंस कोशेंट, EQ इज इमोशनल कोशेंट, और SQ है स्पिरिचुअल कोशेंट, इट्स स्पिरिचुअल। ठीक है, कि कोई इंसान कितना स्पिरिचुअल है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि IQ हमें एक जगह तक लेके जाएगी, वहां पे सस्टेन कराएगा हमें EQ, और अगर हमें सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, तो देन हमें कुछ हद तक SQ की भी रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज वी हैव टू बी मॉरली गुड ऑल्सो। ठीक है, और एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज DQ, दैट इज डाइवर्सिटी कोशेंट। आप डाइवर्सिटी को कितना समझते हो? ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डाइवर्सिटी पहले है, हम डाइवर्सिटी को कब समझ पाएंगे? जब हमें डाइवर्सिटी के बारे में पता है, तो हमें डाइवर्सिटी को समझना है, दैट इज वो हमने अभी बात की, उसमें हमारे आइसबर्ग की बात हो गई, हमने डाइवर्सिटी व्हील की बात की, हमने विजिबल, इनविजिबल, आउटर, इनर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सारे डाइवर्सिटी की बात कर ली है। तो उसके बाद आता है हमारा DQ। एज अ टीचर आप में DQ का होना बहुत जरूरी है, एंड DQ की जब मैं बात करती हूं, दैट इज ability to understand various dimensions of diversity। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फिर वही बात है, रेस, एथनिसिटी, जेंडर,
सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, एबिलिटी सिर्फ चीजें नहीं है, इसमें बहुत कुछ आएगा। जो चीजें हमें दिखाई नहीं भी दे रही ना, उन पे भी हमें काम करना पड़ेगा, तो ही हमारा क्या है, DQ जो है बढ़ेगा। और वंस वी हैव अ गुड लेवल ऑफ DQ, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स, मतलब हमें नॉर्मली हमें क्या लगता है, ये अलग है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। डाइवर्सिटी, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ फैक्ट, वी कांट डिनाई इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और डाइवर्सिटी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें हेल्प करती है एक इंक्लूसिव सेटअप की तरफ जाने में। ओके, तो डाइवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है, और डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, डाइवर्सिटी इंटेलिजेंस चाहिए। और कितने आप डाइवर्सिटी को समझने में इंटेलिजेंट हो, वो दैट विल बी योर DQ। आई थिंक यहां तक समझ आ गया सबको, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। इफ एनी स्टूडेंट किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप, क्योंकि दिस इज द थिंग जिसके साथ आप सबको स्कूल में डील करना है, डाइवर्सिटी के साथ डील करना है। एक बच्चा ऐसा आएगा जो घर में उसके पेरेंट्स में हो सकता है अब्यूजिव रिलेशनशिप चल रहा हो, ठीक है, पेरेंट्स में फादर ड्रंकर्ड हो सकता है, ठीक है, खाने को खाना नहीं हो सकता है। और कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जो बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड होंगी, हैप्पी फैमिली से बच्चा आ रहा होगा। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। जो चीजें दिखती हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, जो चीजें नहीं भी दिख रही हैं, एज अ टीचर वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे नॉर्मली हम कहते हैं स्पेशल बच्चों के बारे में, जब भी आपने पढ़ा होगा, तो फिजिकल डिसेबिलिटी जो है दैट इज मतलब वेरी इजी, वो दिख जाती है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, हाँ कम विजन वाला है वहां पे प्रॉब्लम आती है। बट इफ समबडी इज ब्लाइंड, इफ समबडी इज डेफ, उसका कोई लिम्ब का कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीजें दिख रही हैं, तो इन पे बड़े आराम से काम हो जाता है। पर जो चीजें नहीं दिखती हैं, जैसे कि कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, तो उन पे काम ही नहीं हो पाता, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा हमें। ओके, यस, अगर हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, और इंक्लूसिव सोसाइटी का मतलब ही ये है, या इंक्लूसिव स्कूल का ये मतलब है, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये मतलब है, वेयर वी फील वेलकम्ड, ठीक है, हमें लगे कि हम यहाँ पे बिलोंग करते हैं। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे सेशन में हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ और मैं बोली जा रही हूँ, आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो विल आई फील वेलकम? मुझे लगेगा कि कोई मुझे सुनना चाह रहा है? नहीं, आई विल फील एक्सक्लूडेड। मुझे लगेगा कि नहीं, ये खुद में ज्यादा अच्छे हैं, मैं इनके ग्रुप में आ गई, मैं इनके कॉलेज में आके बताने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज नॉट गुड। बट यस, जब आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आप मुझे आंसर कर रहे हो, तो दैट वहां पे मुझे लग रहा है यस यू आर इंक्लूडिंग मी, ठीक है। मैं आपके जब मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा अगर सपोज करो आप मैसेजेस लिख रहे हो और मैं आपके मैसेजेस को देखूं ही ना, ठीक है, अगली बार आप मैसेज ही नहीं लिखोगे, ठीक। तो क्योंकि यू शुड फील वेलकम कि हाँ मैं मैसेज लिखा है, उसका कुछ मतलब है, तो मैं उनको पढ़ रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है। इस तरह से ही स्कूल में एनवायरनमेंट होगा, इसी तरह से हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर हम वहां पे मतलब किसी को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो दैट पर्सन विल नॉट फील बिलोंग्ड देयर। तो ये बहुत जरूरी है हमें चीजों को एक्सेप्ट करना और बिलोंग करना। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, नहीं तो यू कैन से यस इन द ग्रुप एंड आई कैन प्रोसीड फर्दर। यहां तक सबको क्लियर है? अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज शेयर। और देखो ये जो सेशन चल रहा है, दिस इज फॉर यू, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। ओके, चलिए अभी हम आगे चलेंगे। जो चीजें भी आपने पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें कुछ बहुत डिफरेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक हमारा है इट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओनली, ओके। बट यस, हम एक थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे इक्विटी की, इक्वालिटी की। इक्वालिटी आई थिंक सब समझते हैं, है ना। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हर किसी को सेम रिसोर्सेज दे। क्लियर? और हम सब, हर कोई कहता है कि हमें हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट रखना चाहिए, हमें हर किसी को बराबर से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना। हर कोई बराबर होना चाहिए। पर क्या वो चीज एक्चुअल में फिजिबल है?
अब जैसे ये आप पिक्चर देख पा रहे हो, इसमें क्या है, 3 लोग हैं, एक मैच चल रहा है, एक फेंस लगी हुई है, उसमें एक इंसान ऑलरेडी, उसकी अच्छी हाइट है, ये विजिबल है। मैं फिर वही बात कर रही हूँ, हम विजिबल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। एक थोड़ी कम हाइट का है और एक उससे भी छोटी हाइट का है। इट कैन बी डिफरेंस इन एज ऑल्सो, ठीक है। हाइट का तो हमें विजिबल हो रहा है ना देख के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वालिटी के चक्कर में हमारे पास 3 बॉक्सेस थे, तो हमने तीनों को एक एक बॉक्स दे दिया। क्लियर? तो क्या ये हमने ठीक किया? कोई बताएगा मुझे? नो मैम। नो। क्यों? क्या गलत क्या है यहाँ पे? जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो गड़बड़ कहाँ पे होगी ये बता दीजिए। Ma'am, the people who are present in the picture, they are just watching the match. इक्वालिटी इसमें ये बॉक्सेस देने में तो इक्वालिटी है, बट जो द गाय विथ स्मॉल हाइट इज अनएबल टू वॉच एनीथिंग, तो इन दिस केस इक्वालिटी इज नॉट देयर। तीनों को देखने का बराबर हक देना चाहिए। आई थिंक ऐसा है कुछ। हाँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करनी चाहिए, है ना। हमने क्या किया, अपनी तरफ से चीजों की डिवीजन बराबर कर दी। अब ये एक एग्जांपल है, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जहां पे सपोज करो हमने कहा कि हम ना बच्चों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, शूज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। मैंने 6 नंबर के शूज लिए और सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। क्योंकि हमें है सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, और हम सब यही चाहते हैं ना कि सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हमने सबको 6 नंबर के शूज लाके दे दिए। तो क्या वो ठीक है? क्योंकि अब वहां पे शू साइज में वेरिएशन आएगी ना, किसी को 3 नंबर आएगा, किसी को 4 होगा, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 9 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट डन। हमने अपनी तरफ से काम भी किया, शू परचेज किए, डिस्ट्रीब्यूशन की सब कुछ किया, बट हमारा पर्पस जो था कि जिसके पास शू जाएंगे ही और शी शुड फील कि हाँ मुझे कुछ मिला, आई वॉज गिफ्टेड समथिंग, तो उसका पर्पस तो सॉल्व ही नहीं हुआ। तो उसे वो चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो एक नो डाउट हमें इक्वालिटी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, पर इक्वालिटी आएगी कैसे, दैट इज द कंसर्न, ठीक है। अब यही चीज अगर हम इस चीज को इस तरह से चलाएं, जिसमें हमने बात की इक्विटी की। इक्विटी क्या है? गिविंग इंडिविजुअल्स व्हाट दे नीड टू सक्सीड। क्लियर? हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जहां पे 3 बॉक्सेस थे, देखा किसको कितनी जरूरत है। क्लियर? जो लंबी हाइट वाला इंसान था उसको बॉक्स की जरूरत नहीं थी, जो थोड़ा कम हाइट वाला था उसको हमने एक बॉक्स दे दिया, और जो उससे भी कम हाइट का था उसको हमने 2 बॉक्सेस दे दिए। क्लियर? तो इससे क्या हुआ कि वो मैच को देख पा रहे हैं। हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी, असेस टू अपॉर्चुनिटी दी, रिसोर्स दिया, और उसकी नीड्स को कंसीडर करते हुए दे दिया, ठीक है। अब जैसे शू वाली एग्जांपल दे रही थी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो छोट मतलब शू साइज के हिसाब से उनको हमने स्पोर्ट्स शूज सबको दे दिए, ठीक है। जिसको 3 नंबर का शू आता था उसको 3 नंबर का दे दिया, जिसको 5 का आता था उसको 5, जिसको 9 का आना था 9, तो हमने सबको शूज दे दिए। ये ठीक किया हमने, ये ठीक कर दिया हमने, अब चीज सॉर्टेड है, कोई दिक्कत तो नहीं। नो मैम। बाकी भी बोल सकते हैं। Yes. Needs of the people, give them same box. Equity needs support to those who need support. Okay, okay, all okay. अब ठीक हो गया सब, है ना। सबको हमने स्पोर्ट शूज दे दिए, दैट इज फाइन। आप में से हर कोई स्पोर्ट शूज डालता है? एवरीबडी लाइक स्पोर्ट शूज? या चलो हम इसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि हमने ना हील्स वाली बैलीज दे दी सबको, बॉयज गर्ल्स सबको हील्स दे दी, तो सब डालोगे वो? दी आपके साइज की है। तो फिर ठीक कहाँ हुआ? गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे भी। तो हमें यहाँ पे किस चीज का देखना है, किसको क्या पसंद है ये भी तो देखो ना, उसको चाहिए क्या, नीड तो है, शू की नीड थी, ठीक है। यहाँ पे हमें कहा कि हाँ हमें बच्चों को कहीं लेके जाना है, तो वहां पे उनको नीड है, तो हमने शूज मतलब फुटवेयर देने थे बेसिकली। हमने क्या कर दिया, सबको शूज ही दे दिए एक ही तरह के, चाहे उनके साइज के हिसाब से दिए।
बट फायदा कुछ नहीं ना हुआ। अब किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है इसको भी तो कंसिडर करना है ना। डाइवर्सिटी तो यही कहती है। अब एक है वो कहेगी मुझे हील्स डालनी पसंद है, कोई कहेगा मुझे स्पोर्ट शूज पसंद है, कोई कहेगा मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है स्पोर्ट शूज। तो हमें उनको भी कंसिडर करना है। जब हम उस चीज को कंसिडर करेंगे देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंक्लूजन। ठीक है, अभी पहले थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेते हैं, इक्विटी और इक्वालिटी वाले कंसेप्ट को। इक्वालिटी क्या कहते हैं? गिविंग एवरीवन द सेम थिंग। ठीक है, सेम शू साइज दे दिया। इक्विटी क्या कहते हैं? गिविंग एवरीवन दैट दे नीड ऑन द सेम लेवल। ठीक है, शू सेम दिया बट साइज जो उनको फिट हो गया। क्लियर? हमें क्या है, हमें कहां तक पहुंचना है? हमें इक्वालिटी पे पहुंचना है। इक्वालिटी क्या है? मेरा गोल है। पहुंचूंगी कैसे? सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट होगा। कब होगा? अगर मैं इक्विटी को फॉलो करूंगी। इक्विटी क्या है? एक पाथ है। क्लियर? क्लियर? हम यहाँ पे सब क्या करते हैं? हम पहले इक्वालिटी की बात करते हैं, सबको बराबर दे दो, नीड के हिसाब से दो ना। खाना खाने लगे हो, सबके लिए घर में सेम नंबर ऑफ चपाती थोड़ी बनती हैं। किसी को 2 चाहिए, किसी को 4 चाहिए, किसी को 1 चाहिए। और वो भी हमारे कई बार डेली बेसिस पे चेंज हो जाती है, किस दिन ज्यादा भूख है, किस दिन कम भूख है ना। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि रोज की 2 चपाती देनी शुरू कर दी। नो, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। क्लियर? कि उस दिन की नीड क्या है, उसके हिसाब से चीजों को चलना पड़ेगा हमें। तो ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इक्वालिटी हमारा गोल है, इक्विटी हमारा पाथ है। मैं इक्वालिटी तक पहुंचूंगी कैसे? थ्रू इक्विटी। क्लियर? क्लियर है? अब जो मैं बात करी थी कि हमें बच्चे की नीड के लिए कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। कि कैसे उसको लगेगा कि मुझे शूज तो मिल गए पर मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ इस चीज का। तो वेलकम्ड, वैल्यूड, एम्पावर्ड कब फील करेगा? जब चीजें उसके हिसाब से होंगी। हम यहाँ पे बॉक्सेस दे रहे हैं, है ना, बॉक्सेस को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, हम इस पेंस को ही क्यों नहीं रिमूव कर देते जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, जैसे इस फोटोग्राफ में देखो, हमने प्रॉब्लम पे काम करना है, इंक्लूजन ये कहती है। ठीक है, पहले क्या था, जब इंटीग्रेशन की बात करते थे तो हम कहते थे बच्चा अपने आप को एडजस्ट करेगा। इंक्लूजन क्या कहती है? हमने इन्वायरमेंट को, हमने चीजों को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। क्लियर? अब यहां पे क्या है, हमने फैंसी रिमूव कर दिया। नेक्स्ट में क्या किया, एक स्पेशल बच्चा है उसके लिए हमने एक को बॉक्सेस दे दिए, एक को हमने रैंप बना के दे दी। अब वो इंडिपेंडेंट हो गया, खुद से चढ़ सकता है, खुद से उतर सकता है रैंप को। अगर हाँ, हर बार हमारे लिए क्योंकि फिजिबल नहीं होगा कि हम बैरियर को रिमूव कर दें, हर बार फेंस को रिमूव करना हो सकता है हमारे पास, हमारे लिए फिजिबल ना हो। पर यहाँ जहां जब भी पॉसिबल हो, सबसे पहले वो बैरियर को रिमूव करो, क्योंकि हम इसको बोलते हैं लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट। ठीक है, LRE बोलते हैं। तो हमें हमेशा बच्चे को लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रखना है, ताकि बच्चे को कम से कम अकोमोडेट करना पड़े, बच्चे को कम से कम चीजों को अपने, मतलब बच्चे को अपने आप को कम से कम चेंज करना पड़े। तो पहले तो एनवायरनमेंट को वैसा बना दो, नहीं बना सकते तो उसको फैसिलिटेट करो। जैसे इसमें हमने बच्चे को कैसे फैसिलिटेट किया, एक रैंप बना दी। क्लियर? जिसको बॉक्सेस चाहिए थे उसको बॉक्सेस दे दिए। अब ये नहीं है कि सबको रैंप दे दें। अगर हम सबके लिए वो चीज कर देंगे ना, दैट विल ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं आपको वैसे एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, इफ फिजिबल, लेट मी सी। चलिए बाद में एंड में देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। एक वीडियो है बहुत छोटी सी, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम चीजों को स्पेशल बच्चों के हिसाब से सब कुछ कर देंगे ना, तो जो नॉर्मल है सब, जिसको हम अपने आप, जब हम सबको अपने आप को कंसीडर करते हैं कि वी आर नॉर्मल, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे। अब सपोज करो अगर बुक्स हैं, अब सारी बुक्स अगर ब्रेल में आनी शुरू हो जाए तो क्या आप कंफर्टेबल होगे पढ़ने में?
क्योंकि तब सिचुएशन क्या है, रिवर्स हो जाएगी। जैसे इस टाइम पे एक ब्लाइंड बच्चा फील करता है बुक को देख के, उस टाइम पे हम सेम फीलिंग से निकलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें चीजों को, बस ये नहीं है कि सबके साथ ऐसा कर दो, सबको बराबर कर दो, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड, जिसकी जैसी जरूरत है, और उसको दे के उसके बाद उसको लगे जरूर कि हाँ मेरा भी ध्यान रखा गया है, मेरे इंटरेस्ट को, ठीक है, मेरी जरूरत को कंसीडर किया गया। सिंपल सी बात है, हम जाके खुद चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप एक जगह पे शूज सारे रख दो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के, जिसको जो पसंद आए वो पिक कर ले, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल थिंग टू डू, ठीक है ना। हमें इस तरह से चीजों को प्रोसीड कराना है। अब देखो ये एक अगेन सारी चीजों को हमने फिर से एक सिंगल डायग्राम में बना दिया है। इक्वालिटी, एवरीवन गेट्स द सेम रिसोर्स रिगार्डलेस ऑफ द नीड, सेम चीज मिल रही है, जरूरत है कि नहीं है। इक्विटी क्या कहती है, एवरीवन गेट्स व्हाट दे नीड टू सक्सीड, उसको क्या चाहिए उसके हिसाब से। और एवरी इंक्लूजन क्या कहती है, एवरीवन फील्स वेलकम्ड, वैल्यूड एंड इंक्लूडेड। अब यहाँ पे हम फेंस को रिमूव नहीं कर पाए, देखो यहाँ पे फेंस अभी भी लगी हुई है, बट क्या किया हमने, फेंस को उस तरह से मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ताकि हर कोई उसमें से इजिली सी थ्रू बना दिया उसको। जहां पे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं चेंज करेंगे, जहां पे हम चीजों को अडेप्ट करना है अडेप्ट करेंगे, जहां पे मॉडिफाई करना है वहां पे हम चीजों को मॉडिफाई करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू डू, ओके। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अगर आप इस चीज को समझ जाओगे द थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। अगर मुझे इक्वालिटी लेके आनी है, जैसे हमने पहले बात की कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, इक्वालिटी लेके आना, ठीक है। वो कब आएगी, अगर मैं इक्विटी करूंगी तो, ठीक है। और इक्विटी तभी होगी अगर मैं इंक्लूजन को कंसीडर करूंगी, क्लियर। देखो इक्विटी इज द गोल, ठीक है, बट इट्स नॉट पॉसिबल इफ वी डोंट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू डिफरेंट नीड्स, ठीक है। डिफरेंट नीड्स क्या है, दैट इज इक्विटी। तो इक्विटी को ध्यान कब देंगे हम, अगर हम डाइवर्सिटी को ध्यान देंगे। डाइवर्सिटी को ध्यान देंगे तो मतलब हम सबको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब तक हम इंक्लूजन के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम इक्विटी के बारे में नहीं सोच सकते, और जब तक इक्विटी नहीं होगी इक्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इक्वालिटी आए तो हमें अपना जो माइंडसेट है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव करना पड़ेगा, हमें इंक्लूजन की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे जाएंगे, विद इक्विटी। इक्विटी क्या है, एक मेथड है कैसे करना है, क्लियर। और उसके बाद है हमारा इक्वालिटी विल बी द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इक्वालिटी, क्लियर है। यहाँ इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखो क्योंकि ये क्रक्स है कह लीजिए एक तरह से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सब, हमारी गवर्नमेंट भी यहाँ तक की चीजों को रिवर्स ऑर्डर में चला रही है। हमने पहले सबको बोल दिया सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे दो, सबको फ्री यूनिफॉर्म दे दो, सबको फ्री शूज दे दो, सबको फ्री बुक्स दे दो, सब कुछ फ्री कर दो सबको सबको, ठीक है। देखा ही नहीं किसको जरूरत है किसको नहीं, रिजर्वेशन सबको दे दो, इक्वालिटी होनी चाहिए, हर कोई बराबर होना चाहिए, नो, ठीक है। इक्वालिटी इज द गोल, आना कैसे था, पहले इक्विटी होनी चाहिए थी, और उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लोग कहाँ कहाँ अलग अलग हैं, कहाँ पे किसको जरूरत है ज्यादा, किसको कम जरूरत है, जिसकी जैसी जरूरत उसके हिसाब से उसके साथ ट्रीटमेंट करो, वेरी सिंपल। हाँ इसमें ये जरूर आएगा कि लोग आपको कह सकते हैं कि शायद यू आर बाइस्ड, ठीक है, कि इसको ज्यादा मिला इसको कम मिला, बट दैट शुड बी, लोगों को एम्पैथेटिक भी होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा कि जरूरत को ध्यान में देखा जा रहा है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हम हर किसी को ऐसे ही चीजें दे रहे हैं, क्लियर है। यहां तक देखो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, इससे जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं डिस्कस करना चाहती थी, दैट वाज डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, इस चीज को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ।
इसके बाद हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, इंक्लूजन की बात करेंगे। बट यहां तक अगर, क्योंकि जब तक आप इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे, इंक्लूजन अब बात हो रही है और इक्वालिटी की बहुत टाइम से बात हो रही है, जबकि होना चाहिए था पहले इंक्लूजन की बात होती और फिर इक्वालिटी की बात होनी चाहिए थी। यहां तक क्लियर है? शुड वी प्रोसीड फर्दर? Yes, ma'am. और अगर अब आप वैसे सोचो, आप सब मतलब हर किसी ने अपनी लाइफ में कुछ चीजों को हम मैनिफेस्ट करते हैं, सोचा होता है कि आगे जाएंगे तो ऐसा होगा। तो आप क्या सोचते हो कि जब आप स्कूल में जाओगे आपको कैसे बच्चे मिलेंगे? कुछ है किसी का कोई थॉट पैटर्न, किस तरह के बच्चे मिलेंगे आपको, या आप स्कूल में जाके ऐसा करना चाहते हो? कुछ है कि मतलब कुछ भी प्लानिंग हो किसी की? हाँ, अभी हम इंक्लूसिव की ही बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। इक्विटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, और इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? कोई जैसा भी बच्चा है उसको इंक्लूड करो क्लासरूम में। गवर्नमेंट ने, आपने पॉलिसीज पढ़ ली हैं सबने, ठीक है, सिलेबस का पार्ट था आपका कि बहुत सारी पॉलिसीज हैं, राइट टू एजुकेशन आ गया है, एसएसए आया था, रमसा आया था, अब उसके बाद और काफी सारी चीजें चल रही हैं जिसमें एक मैंडेटरी कर दिया है स्कूल्स के लिए कि कोई भी स्पेशल बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेने आता है तो नो स्कूल कैन डिनाई दैट, ठीक है। तो जीरो रिजेक्शन पॉलिसी चलती है स्कूल्स में। तो स्कूल वालों को मैंडेटरी है बच्चों को स्कूल में एनरोल करना, ठीक है। हाँ, ये सब आप एक्ट्स पढ़ चुके हो, मैं एक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ये पॉलिसीज हैं जो बनती हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। पर पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन से पहले हमें चीजों को ग्रास रूट लेवल पे समझना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में रिसोर्स रूम्स बने हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल, इनफैक्ट सीबीएसई आईसीएसई कहता है कि एवरी स्कूल शुड हैव अ स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। पर बहुत सारे स्कूल्स में ऑन रोल मतलब पेपर्स पे, रजिस्टर्स पे स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंटेड हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर स्पेशल एजुकेशन। इंक्लूड, बच्चों को इंक्लूड करने के लिए कुछ नहीं हो रहा। जो रिसोर्स रूम बने हैं बहुत सारी जगह पे, जब मैंने विजिट किया है मैंने देखा है कि रिसोर्स रूम को ताला लगा हुआ है, कोई बच्चा वहां पे विजिट ही नहीं करता, ठीक है। बच्चों को वो चीजों को टच ही नहीं करने दिया जाता। जो डिफरेंट, हम कहते हैं ना, आगे हम अभी बात करेंगे, डिफरेंट मेथड्स, स्ट्रैटेजीज यूज करो, टीचिंग एड्स यूज करो, पर बच्चों को जब तक असेस नहीं दी जाएगी तो तब तक प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके कारण बच्चा स्कूल तक तो आ गया, ठीक है। और स्कूल तक भी कैसे आ रहा है सोचो, क्या वो बच्चा बस में बैठ के आ सकता है? अगर एक बच्चा, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेने लगी हूँ व्हील चेयर की, एक बच्चा व्हील चेयर पे है, ठीक है, वो घर से स्कूल तक आना ही उसके लिए सबसे बड़ा टास्क है। पहले स्कूल से, मतलब घर से स्कूल तक कैसे आना है? क्या हमारे रोड्स उस तरह के बने हुए हैं? क्या हमारे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है? सारे रूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं? अगर कुछ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे हैं, क्या वहां पे रैंप बनी हुई है? बच्चा स्कूल में तो पहुंच गया, पर वहां पे क्या हो रहा है? बच्चा कंफाइंड हो रहा है। नो डाउट इट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन ओनली, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, आइसोलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं जो भी बहुत सालों से चल रही है। पर वहां पे भी क्या है, स्टूडेंट, अ चाइल्ड इज कंफाइंड टू अ रूम, वो खुद से अपने ग्राउंड का चक्कर तक नहीं लगा पा रहा, क्योंकि जो रोड है या जो हमारा पैसेज है वो ही फिजिबल नहीं है ताकि वो आराम से मूव कर सके। यहाँ तक कि एक रेगुलर बच्चा भी उनपे अच्छे से नहीं चल सकता क्योंकि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो स्पेशल बच्चे के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये है, ये जो आप कह रहे हो ना राजवीर, ये सब चीजें हैं, और गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए हैं, मैंडेटरी है। प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो एडमिशन दे देते हैं बच्चों को, बट देयर इज ओनली फिजिकल इंक्लूजन। बच्चा क्लास में बैठा हुआ है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। बट हाँ, हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग सेंसिटिव ही नहीं है। हम क्या, पॉलिसी आ गई, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है कर देंगे जी।
गवर्नमेंट ने कहा एडमिशन देनी है, दे दीजिए, एडमिशन दे दी, पर सिर्फ एडमिशन देना हमारा पर्पस नहीं है ना, उस बच्चे की नीड्स को समझना है। डाइवर्सिटी तो यही कहती है ना कि वो उस बच्चे की नीड्स अलग हैं, उनको समझो, उसकी नीड्स को फुलफिल करना है। देयर इज नथिंग प्रैक्टिकल फॉर एड्रेसिंग दिस नीड्स। देखो, प्रैक्टिकल हमें बनाना है चीजों को, कोई भी चीज इतना मुश्किल नहीं है। एज अ टीचर, तभी मैं कह रही हूँ, यू हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। जब आप स्कूल्स में जाओगे ना, आप ही के पास स्पेशल बच्चे आएंगे और यू विल बी द वन जो कहोगे कि मैम ये टाइम वेस्ट कराते हैं, हमारा हमारा सिलेबस पीछे रह रहा है, हम इनको टाइम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तब हम सब ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चीजें, एक बार बच्चा स्कूल में आ गया ना, उसके बाद ऐसा कहना कि ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स वेरी रॉन्ग टू से। ठीक है, क्योंकि बच्चे का घर से निकालने टास्क हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को उस माइंडसेट से नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स जिनको हम फोर्स कर सके। पर अगर फोर्स करके, कंपेल करके, या कुछ भी हम कह लो कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देके हमने कुछ ल्योर कर दिया, स्कॉलरशिप दे दी, कुछ भी करके बच्चा अगर स्कूल में आ गया ना, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होली सोली टीचर्स की है। अगर तारे जमीन पे सबने देखी है, मतलब तारे जमीन पे एक ऐसी मूवी है जो सब सिलेबस का पार्ट है, उससे भी बहुत ब्यूटीफुल मूवीज हैं जो ऑलरेडी मतलब देखनी चाहिए सबको, बट आई होप क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो सबने तारे जमीन पे देखी है। उसमें एक टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मुझे इस बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो वो ही गोज टू एनी एक्सटेंड, वो उसके घर तक पहुंच जाता है, उसके पेरेंट्स को कन्विंस करता है, अपने इंस्टीट्यूट से लड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसने सोचा है कि मुझे करना है, और टीचर के पास सीरियसली ये पावर है, अगर वो कुछ सोच लेंगे हमें करना है, ही और शी कैन डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, और बच्चों को इन बच्चों को कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं है, वो ये पहले इनकी नीड को समझना है। आपको एक बार आपको समझ आ गया कि इनको चाहिए क्या, फिर उसके बाद आप चीजों को इनके हिसाब से प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, ये एक छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल एक और दिया है। डाइवर्सिटी आस्क, वो पूछता है कि कौन कौन है, बस उसको सिर्फ इतने से मतलब है। ठीक है, इक्विटी कहता है कोई ऐसा तो नहीं जो रूम में नहीं आ पाया, हमें कुछ करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। और इंक्लूजन क्या है, अच्छा सब आ गए, कैसा फील कर रहे हो, उनसे बातचीत करना। अब सपोज करो, जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो आपको एक पार्टी पे इनवाइट कर दिया गया, कोई आपका फेयरवेल है सपोज करो, या कहीं आपके किसी फ्रेंड की पार्टी है, या फ्रेंड की नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि आपके किसी क्लासमेट की पार्टी है, उसने सारी क्लास को इन्वाइट कर लिया। ठीक है, जब हमने सारी क्लास को इनवाइट कर दिया, कोई उसका फ्रेंड है नहीं, उसने सबको बुला लिया। ठीक है, उसने डाइवर्सिटी को कंसीडर कर लिया। अब वहां पे जाके कि आपको कोई बुला ही नहीं रहा, ठीक है, आपको कोई खाने को नहीं पूछ रहा, कोई डांस करने को नहीं पूछ रहा, तो विल यू फील वेलकम्ड देयर? पार्टी में पहुंच तो गए, पर उसके बाद कोई फायदा हुआ पार्टी में जाने का? हाँ जी, पार्टी में पहुंच तो गए सब, पर पार्टी में अगर आपको किसी ने पूछा ही नहीं, वैल्यू ही नहीं किया, ठीक है, आपकी प्रेजेंस या एब्सेंस से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो कोई पर्पस था उस पार्टी में जाने का? नेक्स्ट टाइम जाओगे वैसी पार्टी में? नो और सेम मैम। चीज स्पेशल बच्चों के साथ हो रही है। ठीक है, हम उनको बिल्कुल फीलिंग लाइक अलोन, वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, ये सोचते हैं इससे बेटर तो ना ही आते, क्या जरूरत थी आने की। तो सेम चीज इन बच्चों के साथ हो रही है, उनको स्कूल में तो लाके बिठा दिया, और ये हो रहा है, बैठे हुए हैं वो स्कूल्स में, ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में नहीं है। हाँ, 100% नहीं है, पर कुछ परसेंटेज जो है स्कूल में, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि जो स्कूल में है उनको हम क्या दे रहे हैं, व्हाट वी आर गिविंग देम, क्या एड्रेस कर रहे हैं उनकी नीड्स को, वो एज ए टीचर हमें देखना पड़ेगा। ओके, अभी इसमें क्या है, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात करते हैं तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना है। एक तो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, सोशली हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी है। अगर हम इंक्लूजन की तरफ जाएंगे या इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिकली हमारे पे बर्डन कम होगा। अभी जैसे स्पेशल स्कूल्स और ये सब चल रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो ये जो पीछे बना दिए हैं, स्कूल ऑफ एमिनियंस बनाए हैं, या फिर ये
जो स्पेशल एक और स्कूल से जहाँ पे ब्रिलियंट बच्चे जा रहे थे 90+% वाले, मुझे नाम नहीं क्लिक हो रहा, वो स्कूल्स बना दिए। तो उसमें मेरिटोरियस स्कूल्स मैम, हाँ जी मैम, मेरिटोरियस स्कूल्स। हाँ जी मेरिटोरियस स्कूल्स, यस। तो मेरिटोरियस स्कूल में गवर्नमेंट फिर से क्या कर रही है, डिमार्केशन करी जा रही है। अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को बाहर निकाल दिया नॉर्मल बच्चे से। एक तरफ हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट मेरिटोरियस स्कूल्स बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट बच्चा, देखो जब हम इंक्लूसिव की बात करते हैं ना, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें ये नहीं कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो वीक स्टूडेंट हैं या नेगेटिवली डिसेबल्ड हैं उनको हमने कंसीडर करना है। हमने जो पॉजिटिवली डिफरेंट हैं बच्चे उनको भी इक्वल वेटेज देनी है, उनको भी रेगुलर सेटअप में ही रखना है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जो गवर्नमेंट कर रही है, इस पे अलग से मेरिटोरियस स्कूल्स बनाए, उनके अलग से टीचर्स अपॉइंट किए गए, वो एक इकोनॉमिक बर्डन है, ठीक है। अगर हम इंक्लूजन की तरफ रहेंगे तो इकोनॉमिक बर्डन हमारा जो है वो कम होता है, ओके। तो ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव है, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, ये हमारे डेमोक्रेसी में ये कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये कहा गया है, लीगली हमें ये चीजें कही गई हैं, हमारे पास ऐसी पॉलिसीज बना दी गई हैं कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प कर रही है। अब क्लासरूम में हमें क्या करना है, क्यों हमें डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन की तरफ जाना है, कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज ऑप्ट कर सकते हैं। हम कोलैबोरेट करेंगे टीचर्स के साथ, और स्कूल्स में जाके ये कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, ठीक है। यू हैव गुड टीचर्स विद यू, पेरेंट्स होंगे, एक सपोर्ट सिस्टम होगा। अपने ग्रुप्स बनाओ, बच्चों में ग्रुप्स बना दो, पीयर ट्यूटरिंग कर दो, अपने बच्चे को जानने की कोशिश करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको अपने स्टूडेंट्स के नाम तक नहीं पता होते हैं, ठीक है। जिनको नाम ही नहीं पता तो वो आगे बच्चों को कैसे जानेंगे, उनके इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक, उसके फियर्स क्या हैं, ठीक है। जो उनके अनस्पोकन फियर्स हैं उनको भी जानना है एज ए टीचर हमें, ठीक है। अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं हम, क्या और क्या स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, इसमें अलग टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे, जिस तरह का बच्चे का स्टाइल है, जो उसकी स्किल है, उस लेवल पे आके चीजों को तोड़ के उसके हिसाब से सिखाने की कोशिश करेंगे। रिसोर्सेज के एक्सेस देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस में रिसोर्सेज नहीं है, पर वहां तक असेस नहीं है, तो एक असेस प्रोवाइड करना, क्लियर। इंक्लूसिव करिकुलम प्रोवाइड करना, जैसे अगर कुछ बच्चे ब्लाइंड हैं उनके लिए ब्रेल की ऑप्शन होनी चाहिए, उनके लिए कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ऑप्शन होनी चाहिए हमारे करिकुलम में। बच्चों का फीडबैक लेना, बच्चों को एक मतलब एक ऑप्शन देना कि वो बोल सकें क्या चीज उनको ठीक लग रही है, क्या गलत लग रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं। और देखो इसमें हमें, देखो जो भी मैंने ये चीजें बोली, इनमें किसी और की हेल्प चाहिए नहीं हमें, हमें एज अ टीचर सिर्फ खुद से कुछ एफर्ट्स, हाँ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा जो हमें करना पड़ेगा, क्लियर। और एक चीज और है, हमें खुद से भी एक तो इंक्लूसिव होना पड़ेगा अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में और अपनी लैंग्वेज में, क्लियर। हम बहुत बार बायस्ड हैं, हमारे स्टीरियोटाइप थॉट्स बन चुके हैं, हमें लगता है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां इस कामों में अच्छी हैं, लड़के इस कामों में अच्छे हैं, और वो चीज हमारी टर्मिनोलॉजी में भी आ जाती है। तो हमें वहां पे भी चेंज करना है, हमारी बुक्स को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप बुक्स देखो वहां पे जर्नली जब किचन में कोई काम कर रहा है तो दैट इज मदर, जो ऑफिस से आ रहा है दैट इज फादर, लड़का जब भी खेलता हुआ दिखाई देगा तो वो फुटबॉल के साथ खेलता हुआ दिखाई देगा, लड़की बैठी है तो डॉल के साथ खेल रही है, और ये सब चीजें हमारी बुक्स में शो की जाती हैं। तो हमें इन सबको चेंज करने की जरूरत है। लड़की होगी तो हमेशा फ्रॉक में होगी, लड़का होगा तो हमेशा निक्कर में होगा, लड़की होगी तो लंबे बालों में होगी, लड़का होगा तो छोटे बालों में होगा, कोई जरूरी नहीं है। पढ़ाकू बच्चा होगा तो हमेशा स्पेक्स के साथ दिखाया गया होगा, कहीं पे ये चीजें लिखी नहीं गई हैं, बट यस ये हमारी एक स्टीरियोटाइप थॉट्स बन गई हैं, हमें लगता है ये चीज ऐसी ही है। आप देखना जहां पे किसी को पुअर शो करना होगा ना, कभी पुअर मूवीज में या कहीं पे भी, उसको ब्लैक कंप्लेक्शन का दिखा देंगे, माइंडसेट ही बन चुका है। तो ये सारी चीजें हमें पहले खुद से अपने दिमाग से इन चीजों को तोड़ना है, और फिर बुक्स में ये चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जो दिल्ली बोर्ड की मैम ने बात बता रहे थे, जैसे वहां पे हमने यही कोशिश की है कि जो दिल्ली बोर्ड की बुक्स हैं
फर्स्ट टू लेके 5th स्टैंडर्ड की, वो हमने इंक्लूसिव बना दी है। इंक्लूसिव इन सेंस कि जैसे हमने पुलिसमैन बनाया है तो हमेशा पुलिसमैन ही पुलिस पर्सन होगा, वहां पे एक आदमी नहीं, इट कैन बी अ फीमेल ऑल्सो। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, नर्स मेल भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि नर्स हमेशा फीमेल होगी। जैसे टीचर एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, ऐसे डॉक्टर जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, पर हम पुलिस मैन बोलते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ये भी हमें चेंज करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद आता है हमारा बैरियर्स। बहुत सारे बैरियर्स हैं, इसी कारण से इंक्लूसिव एजुकेशन या DEI जिसको हम बोल देते हैं आजकल, वो नहीं हो पा रही है। क्यों? एटीट्यूडनल बैरियर्स है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, लोगों का, बच्चों का। इनफैक्ट बच्चे भी एक दूसरे को मतलब वेलकम नहीं करते हैं। अगर क्लास में कोई स्पेशल बच्चा आएगा ना, तो दूसरे बच्चों से बुली करेंगे, ठीक है। तो एटीट्यूड इज द मेजर प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर हमने किसी चीज को ठीक करना है और हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन इन ट्रू सेंस हो जाए, हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव सोसाइटी बन जाए, तो सबसे पहले जो हमें चेंज करना है दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड सबका ही चेंज होने की जरूरत है। सबसे पहले टीचर्स का। टीचर्स ही नहीं चाहते कि ये हो, टीचर्स को लगता है ये हो ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है। सब चीजें हो सकती हैं, बस एक एटीट्यूड चेंज होगा तो। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, पेरेंट्स का, जिनके वो बच्चे हैं ना, उन पेरेंट्स का ही एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है उनको लेके, तो हमें एटीट्यूड को चेंज करना है, ठीक है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना है, हमें साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं उनको चेंज करना है। करिकुलम को लेके इतने सारे बैरियर्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं, इतने सारे बैरियर्स हैं जिनको हमें विद टाइम ओवरकम करना है। और हम इन बैरियर्स को बड़े आराम से ओवरकम कर लेंगे अगर हमारा माइंडसेट, मैंने जैसे पहले बोला था, इंक्लूजन इज अबाउट माइंडसेट। एक बार हमारा माइंडसेट चेंज हो गया तो थिंग्स विल चेंज। क्लियर? टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर को चीजों को समझना भी पड़ेगा, बिलीव भी करना पड़ेगा, और फिर ही वो काम करेगा। टीचर के लिए हमने ये 3 चीजें बोल रहे हैं, नोइंग, बिलीविंग एंड डूइंग। नोइंग से पहले भी मैं कहूंगी पहले बिलीविंग होगा। फर्स्ट टीचर शुड बिलीव इन सर्टन थिंग्स, ओके, बिलीव करेगा, क्लियर, तभी फिर वो उस चीजों को सीखने की कोशिश करेगा। बिलीविंग, नोइंग, और फिर उसके बाद हम काम करेंगे, और बड़े आराम से टीचर कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, बिलीव करना पड़ेगा खुद पे, सिस्टम पे, बच्चों पे। तो बिलीव सिस्टम इज मस्ट, ओके। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मिशेल 2015 में उन्होंने फॉर्मूला दिया था इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, V+P+5As S+R+L, जिसमें V इज विजन, P जो है पैशन, ठीक है, और 5 A's की बात की थी, अडेप्टेड करिकुलम, एक्सेप्टेंस की बात की है, अडेप्टेड टीचिंग, अडेप्टेड असेसमेंट, इन सब चीजों की उन्होंने बात की है। हमें, जैसे मैंने पहले कहा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, असेस देनी पड़ेगी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग को अडेप्ट करना पड़ेगा, करिकुलम को अडेप्ट करना पड़ेगा, हमारा असेसमेंट का जो तरीका है उसको भी अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे 5 P's आ गए, ठीक है। फिर सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा, टीचर्स को खुद का सपोर्ट बच्चों को देना पड़ेगा, प्रिंसिपल को सपोर्ट टीचर्स को देना पड़ेगा, टीचर्स को सपोर्ट पेरेंट्स को देना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को सपोर्ट देना पड़ेगा। तो हमें एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। फिर हमें रिसोर्सेज चाहिए। देखो, पहले एटीट्यूड है सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब चीजें आएंगी, चेंजेस उसके बाद आएंगे, ठीक है। तो एक विजन हो कि मुझे कुछ करना है, पैशन हो, करके ही रहेंगे, ठीक है। फिर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हो उस चीजों के लिए। फिर आप रिसोर्सेज वैसे जनरेट करोगे, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, वर्ल्ड बैंक बहुत पैसा देता है इन सब चीजों पे काम करने के लिए। और एक लीडरशिप का होना, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि ओनली अ प्रिंसिपल कैन बी अ लीडर। लीडरशिप जो है, कोई भी बंदा जो सोचता है कि मुझे काम करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, दैट हैज अ लीडरशिप क्वालिटीज। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए, स्कूल की तरफ से भी होनी चाहिए, और उस इंडिविजुअल की तरफ से भी वो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। एक स्टूडेंट ने इसमें हमने मेन 4 A's की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी कराओ चीजों की, असेसिबिलिटी कराओ, चीजों को अडेप्ट करो और एक्सेप्ट करो।
अगर हम ये 4 चीजें कर पाएंगे, दैट विल बी वेरी इजी। पहले चीजों की अवेलेबिलिटी कराना है, अगर चीज है अवेलेबल हो गई है, उसे बच्चे को असेस करा दो, ठीक है, वो चीज तक उस चीज को यूज कर सके। अगर उस बच्चे ने उस चीज को यूज किया और वो चीज सही नहीं है, उस चीज को क्या करो, अडेप्ट करो। क्लियर? और फिर जैसी कुछ चीजें हैं, जैसे अब बच्चे ने कुछ लेवल तक ही बच्चा पहुंच पाएगा, हर लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो हमें वहां पे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा चीजों को और लोगों को, ठीक है। और एट द एंड मैं कंक्लूडिंग थॉट में यही कहूंगी कि अब जब आप स्कूल्स में जाओगे, ठीक है, तो कहा जाता है बहुत सारी जगह पे कि इंक्लूसिव लेसन प्लानिंग करो, ठीक है। लेसन प्लान्स में आपके वो सारी चीजें पैरामीटर्स दिखने चाहिए, वो हर डाइवर्सिटी को कैटर करता हुआ होना चाहिए, और बच्चे बना भी लेते हैं ऐसे लेसन प्लान्स। पर वो सिर्फ लेसन प्लानिंग में रह जाता है। जब तक ये चीज आपके दिल को टच नहीं करेगी, आपकी लैंग्वेज में नहीं आएगी, आपके एक्शंस में नहीं आएगी, तब तक कभी भी इंक्लूसिव क्लासरूम्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। बच्चे का क्लास तक आना इज नॉट इंक्लूजन, बच्चे का क्लास में बैठना इज नॉट इंक्लूजन। जब तक आप उसको वेलकम्ड फील नहीं कराओगे, तब तक इंक्लूजन नहीं होगी। और मतलब यही चीज मैं कहना चाहूंगी। और ये नहीं है कि हमने उनकी इंडिविजुअलिटी को खत्म करने की कोशिश करें, हम उनके डिफरेंसेस को खत्म करने की कोशिश करें। हमें ये समझना है, डिफरेंट सेम यूनिक, दैट इज व्हाट मेक अस ब्यूटीफुल ह्यूमन। वी हम सब एक दूसरे से अलग हैं, कहीं कहीं सेम भी हैं, बट यूनिक हैं। और यही एक ब्यूटी है जो हमें एक स्पेशल कह लीजिए इन्वायरमेंट में लेके आती है, जहाँ पे हम एक दूसरे को समझते हैं और चीजों को अच्छा बेहतर करना चाहते हैं। तो इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाना है, उससे पहले इंक्लूसिव क्लासरूम्स बनेंगे, और उससे पहले हमारा आएगा इंक्लूसिव सेटअप, जो हमें अपना लेके आना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, यस बेटा, इफ देयर इज एनी क्वेरी, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। क्योंकि ये चीज बेटा ऐसी है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार पढ़ने में जब हम थ्योरेटिकली इस चीजों को पढ़ते हैं, तो ऐसा कई बार दो थॉट्स आते हैं सबको। एक तो लगता है लाइफ बहुत इजी है, क्या प्रॉब्लम है, एक लगेगा बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। तो जब हम चीजों को सोचेंगे कि हमें प्रैक्टिकली करना है, तब हमें चैलेंजेस आएंगे, और उन चैलेंजेस को हमें ओवरकम ही करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है किसी ने कोई स्पेशल बच्चा देखा हो, पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो वी कैन डिस्कस। Ma'am, I have one doubt. हाँ जी। If we try to जैसे हम ये होता है ना कि कोई भी स्पेशल चाइल्ड है, I'm visiting many schools. I'm a counselor basically. So sometimes situations are like but the child is not willing to be in the same aspect. So what could we do? कुछ ऐसी strategy from your side you can suggest? अब मैं समझी नहीं, आपने क्या बोला कि बच्चा क्या चाहता है? Sometimes family and child is not try to understand anything. हम अपनी ओर से हर बेस्ट एफर्ट करते हैं, मान लो। अब देखो, क्यों नहीं समझना चाह रहा यहाँ पे। अब देखो, डाइवर्सिटी में अगर हम बात करें, हाँ जी बोलिए। अब देखो, जो मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया कि वो आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे, चीजों को, बच्चे को भेजना नहीं चाह रहे, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं। क्यों है ये? क्योंकि उनके कुछ अंडरलाइन एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं, जो मैंने आइसबर्ग की बात की थी ना। कुछ चीजें तो हमें दिख रही हैं कि प्रॉब्लम है, पेरेंट्स सुन नहीं रहे। अब क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनके कैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं? हो सकता है उन्होंने कभी कोशिश की हो। दो तरह के पेरेंट्स होंगे। मैं मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को हम जानते हैं जो एक बार कोशिश करके बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भेज चुके हैं। नॉर्मल स्कूल में उनके एक्सपीरियंसेस इतने खराब रहे हैं कि वो उनका ये कहना था कि इससे बेटर हमारा बच्चा जो स्पेशल स्कूल में था, तो वो लर्न कर रहा था, नॉर्मल स्कूल में आके उसका लर्निंग लेवल या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे नहीं रहे, उसके साथ बुलिंग होनी शुरू हो गई, ठीक है, बच्चे को निग्लेक्टेड फील करवाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उस चीज को बंद कर दिया, और उसके बाद वो आगे उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो मैं इसीलिए आपको Yes, कह ma'am, रही हूँ कि agree. And हमेशा lack सब of awareness is also a factor. इट कैन बी। मैं वही कह रही हूँ, देखो
दो तरह के पेरेंट्स है ना, एक तो भेजना ही नहीं चाह रहे थे, एक थे अवेयर थे, उनको पता था इंक्लूजन है, मुझे स्पेशल में नहीं ठीक है भेजना मैम। अपना बच्चा, मुझे नॉर्मल में भेजना है, पर उनके एक्सपीरियंसेस वहां पे जाके ऐसे हो गए। ठीक है ना, तो ये पहले ऑल राइट। फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रीजन क्या है उनका, उन्होंने मतलब अवेयरनेस नहीं है या एक्सपीरियंस है। अवेयरनेस नहीं है तो बताओ उनको, एफर्ट्स करो। अब जैसे तारे ज़मीं का मूवी का एग्जांपल है, वहां पे पेरेंट्स सुनना ही नहीं चाहते थे, उनको पहले भी किसी ने बताया था कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं है, बट दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। पर उसने स्ट्रैटेजी यूज की, उसने उनको फील करवाया वो चीज जो उनका बच्चा फील कर रहा था, तो उसके बाद वो चेंज हो गए। ये चीजें बहुत मेहनत मांगती है, मैंने वही कहा कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होंगे। और कहते हैं ना कि नॉर्मली कहते हैं कि टीचर का काम जो है हमारा प्रोफेशनली, हम जब स्कूल में गए तब उतनी देर हम काम करेंगे, मतलब वर्किंग आवर्स में, बस उससे ज्यादा नहीं। पर अगर हम इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल लेवल का काम नहीं है, ये सोसाइटी लेवल का काम है, ये एक सर्विस है। ठीक है, तो इसको हमें अपने प्रोफेशनल लेवल से थोड़ा ज्यादा टाइम, एफर्ट, सब कुछ देना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू सो राजवीर ने भी मच। वही बात कह रहे हैं, आई हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट स्टूडेंट्स। हाँ, ये भी बात है। और कोई स्टूडेंट कोई और क्वेश्चन हो? किसी को कोई भी क्वेरी हो, आप पूछना चाहो? क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक कि आपका शायद विजिट हुआ होगा स्पेशल स्कूल में, जहां पे आपने सिर्फ इन बच्चों को देखा होगा, इनको टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा होगा, बट इससे ज्यादा आपने इनके साथ शायद ही किसी ने डील किया हो। अगर किसी का कोई घर में फैमिली में कुछ हो तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट जब आप इनके साथ डील करोगे, और हमने कैटेगरीज की बात नहीं की है, क्योंकि कई बार एक इमोशनल बच्चा भी हमारे लिए स्पेशल हो सकता है, उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, वो टीचर्स के साथ एग्रेशन में बात कर रहा है, तो हमें वहां पे उस बच्चे को भी एड्रेस करना है। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਵਿਦਿਨ ਦਿਸ 3-4 ਡੇਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੌਪਿਕਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਥਾਟਸ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇसीलिए ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਯੈਸ ਹਿਸਾਬ ਮੈਮ, ਨਾਲ। ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਮਐਡ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਈਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਪ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾਏ, that will be the best thing or best reward for you. Yes, beta. Any more questions? Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so ma'am. much. Yes, Okay. ma'am. Hanji. So, on behalf of management, our principal, staff members, and students, I take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to Dr. Monica Mahajan for her enlightening session on equity and inclusiveness through live examples from day-to-day life. Ma'am, your insight, thoughts, and practical examples brought clarity and deeper understanding to a concept that is vital in today's world. Your ability to connect complex ideas with everyday situations truly made the session impactful for everyone present. We are sincerely thankful for the time and efforts you dedicated to this session. Your presence
today's session has inspired us to foster a more inclusive and equitable environment in our academic and personal lives. Thank you once again, Dr. Monica Mahajan, for your valuable contribution. Thank you so much, ma'am. So much. Thank you so ma'am. much. Thank you, ma'am. Okay. Can I leave, ma'am? Yes, ma'am, definitely. thank you. Thank you so much, ma'am. Bye-bye. Thank you. And thank you all the students for actively participating. Thank you so much. Thank you. Thank you.